Welcome students in science class. In previous video we discussed about the animal nutrition, in which we discuss about the mode of intake of food and food requirement means food habits. Okay, we also discuss about the modes of nutrition. There are how many type of modes of nutrition occurs, just like we discussed about the parasitic, saprophytic, holozoic and insectivorous. Okay, today we start the next topic, that is the nutrition in humans. Okay, this is the very important topic for you because you know about them in our bodies. How can the food that is transferred from one place to another, and how can that is digest, how can the energy provide in our body, in which part that is responsible for the breaking down of food materials. ठीक है, ये सभी प्रोसेस हम इसके अंतर्गत आपको डिस्कस करेंगे. दैट इज क्लियर. ओके, लेट्स स्टार्ट द न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस. इन ह्यूमंस की बात करें तो नॉर्मली जो फूड ब्रेकिंग डाउन होता है, देयर इज टू प्रोसेस अकर्स, मीन्स which are food we eat and they are transferred through the muscular tubular structure. This is commonly known as the alimentary canal, means there is first part is alimentary canal and second that is different type of enzyme are secreted from the different glands. तो दूसरा जो पार्टिसिपेट करता है वो होता है ग्लैंड्स. ठीक है, जिसको हम एंजाइम्स बोलते हैं, जिसके थ्रू एंजाइम्स सिक्रेट होते हैं which are responsible for the breaking down of food materials. Okay, so first we discuss about the steps or sequence of steps which are involved in the process of nutrition in human beings. ठीक है, ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन के लिए जो प्रोसेस होते हैं, कितने स्टेप्स होते हैं, फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट देम. देयर आर 5 स्टेप्स अकर्स. फर्स्ट वन इज द ingestion. What means about the ingestion? Ingestion means that is intake the food inside the mouth. ठीक है, intake the food inside the mouth. This process is known as the ingestion. And in case of ingestion, where that is put the food in mouth and which are the another organ that is also present in the mouth, that is the teeth and tongue, which are responsible for the chewing and biting the food materials and grinding, that is also. Okay, second process that is the digestion. Digestion क्या होता है? The process of breaking down of complex insoluble molecules into the simple soluble forms. The process is known as the digestion. That is clear. इसको याद रखिएगा. The process of breaking down of complex insoluble molecules into simple soluble forms. The process is known as digestion. And for the digestion there are different chemicals are released in our bodies. Means that is the digestion. food को digest करने के लिए हमारे बॉडी में different chemical release होते हैं and this chemical is known as the enzymes. Okay, that is clear. और जो प्रोसेस होता है डाइजेशन का, दैट इज स्टार्ट इन द बक्कल कैविटी एंड गेट्स कंप्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है आपके बक्कल कैविटी से स्टार्ट होता है, जहां पर सलेवरी एमाइलेज एंजाइम सिक्रेट होता है, और जो लास्ट इसका डाइजेशन कंप्लीट कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन रीजन में होता है. ओके, थर्ड प्रोसेस आफ्टर द डाइजेशन, यदि डाइजेशन ब्रेकिंग डाउन हो गया, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो क्या होगा? थर्ड वन इज द एब्जॉर्प्शन. द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब बाय द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रॉम वेयर इट्स गेट पास्ड ऑन टू द ब्लड. ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में. स्मॉल इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर यदि पढ़ेंगे तो यू नो अबाउट देम. देयर इज फिंगर लेग प्रोजेक्शन
appears in case of small intestine, which are responsible for the increase the surface area of the small intestine and also help for the absorption of food. क्योंकि कंप्लीटली डाइजेशन फूड कहाँ हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है, और वहां पर जो एंजाइम रिलीज हो रहा है उसके कारण कंप्लीट ब्रेक डाउन होकर के वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे वो इजिली जो विलाई निकली हुई है फिंगर लेग प्रोजेक्शन, दिस इज नोन एज द विलाई, उसके द्वारा एब्जॉर्ब होके उसके जस्ट इनर लेयर में क्या प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स होते हैं, जहां पर ये चाहे उसमें ट्रांसफर हो जाता है और ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में सर्कुलेट होते जाता है. दैट इज क्लियर. नेक्स्ट वन इज द एसिमिलेशन. एसिमिलेशन वही है एब्जॉर्प्शन. जब इंटेस्टाइनल वॉल में एब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब जो ब्लड कैपिलरीज है, देन ट्रांसफर देम. द एब्जॉर्ब फूड इज यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी फॉर ग्रोथ एंड फॉर्मेशंस ऑफ द बॉडी पार्ट्स. दिस प्रोसेस इज नोन एज द एसिमिलेशन. मीन्स जो फूड या एनर्जी जो रिलीज हुई ब्रेकिंग डाउन के बाद, जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो वेसल्स हैं वहां से एब्जॉर्ब होने के बाद पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर लेते हैं. ठीक है, किसके द्वारा जाता है, ब्लड के द्वारा. और जहां एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है वहां फूड को ब्रेकिंग डाउन करके वहां से एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं. यह पूरा प्रोसेस आपका कहलाता है एसिमिलेशन. दैट इज क्लियर. And last step that is occur in case of nutrition in humans, that is the egestion. What is the egestion? The elimination of undigested food from the alimentary canal is known as the egestion. Okay, the elimination means that is removal of undigested food or after digestion the waste material. ठीक है, that is eliminated from the alimentary canal is known as the egestion. That is clear. So this is the 5 steps that is occur in case of nutrition of human beings. Okay. First we discuss about the alimentary canal. So how can that is made of the alimentary canal? There are different organs that is participated in case of alimentary canal. You see the structures. देखिए ये माउथ पार्ट है, ठीक है. माउथ पार्ट्स ये है आपका अपर एंड लोअर जा, यहाँ पर बक्कल कैविटीज है. ठीक, ये स्टार्ट होता है और यह बक्कल कैविटीज कहाँ आता है, फूड पाइप. दिस इज द एलोंगेटेड जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, यह फूड पाइप है जिसको ओएसोफेगस बोलते हैं. ठीक है, ओएसोफेगस. इसके बाद ये फूड कहाँ आता है, स्टमक रीजन में. ये स्टमक रीजन से स्टमक में आता है. स्टमक से कहाँ चले जाता है फूड, दैट इज ट्रांसफर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. ये जो पिंकिश कलर का दिख रहा है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है. ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है. रीअब्जॉर्प्शन कहाँ चले जाता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन, जो ये बड़ा दिख रहा है चौड़े पार्ट में, ये लार्ज इंटेस्टाइन है. Okay, and there is the rectum. This is the rectum and anus. This is the part of the alimentary canal. Clear? तो alimentary canal के क्या पार्ट है, क्लियर हो गए. Okay, तो what happen in case of alimentary canals? We discuss in short. जैसे स्टार्ट कहाँ से हम कहें, माउथ से होता है. ठीक है, और जो एलिमेंट्री कैनाल में होता है, दिस इज द एसोसिएटेड विद द ग्लैंड्स. इसमें ग्लैंड्स भी एसोसिएट होते हैं, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल डाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल्स. ठीक है, कंप्लीटली फूड डाइजेशन के लिए उस ग्लैंड की रिक्वायर होती है. दिस इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ एंजाइम्स. तो फर्स्ट पार्ट से यहां डिस्कस करते हैं माउथ एंड बक्कल कैविटी. तो नॉर्मली इन ह्यूमंस द फूड इज टेकन थ्रू द माउथ फ्रॉम वेयर इट गोज इनटू द बक्कल कैविटीज. माउथ में हम लेते हैं फूड को जहां पर बक्कल कैविटी प्रेजेंट होती है. इनसाइड द बक्कल कैविटी देयर आर 2 स्पेशलाइज्ड ऑर्गन आर प्रेजेंट. फर्स्ट वन इज द टीथ, अनदर इज द टंग. टीथ की बात करें, टीथ
आर रूटेड इन द सॉकेट ऑफ द बोन ऑफ जा। जो जबड़े होते हैं अपर एंड लोअर जा, उसमें सॉकेट बने होते हैं जिसमें जो टिथ है उसकी रूट जाके उसमें फिट होती है। ठीक है, उस सॉकेट में जो संरचना बनी है उसमें जाके फिट होता है। जस्ट लाइक यू सी हियर, ये सॉकेट है और इसमें सीट आपके जो टिथ है इस तरह प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो रूट जो होता है टिथ का यहाँ पर प्रेजेंट होता है इस सॉकेट के अंदर। ओके, these are covered of white strong shining protecting material called enamels। जो टीथ होता है उसका आउटर पार्ट होता है व्हाइटिश कलर शाइनिंग, चमकीला होता है। देखो अपना टीथ ही देखे हो, ठीक है, बिल्कुल व्हाइट कलर का चमकीला होता है। जो मटेरियल या प्रोटेक्टिव उसको टीथ को प्रोटेक्ट करता है, दिस इज नोन एज द एनामल। इसको एनामल बोला जाता है। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टीथ? द टीथ हेल्प इन कटिंग, टीयरिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड। ठीक है, टीथ का मेन फंक्शन है फूड को कट करना, टीयर करना, हार्ड यदि मटेरियल उसको टीयर करने का काम करता है, एज वेल एज द ग्राइंडिंग ऑफ फूड। ओके, अब टीथ की बात कर रहे हैं तो दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट। इन एडल्ट ह्यूमन की बात करें तो टोटल नंबर कितने होते हैं? 32। मीन्स 16 टीथ आर प्रेजेंट इन अपर जा एंड 16 दैट इज टीथ आर प्रेजेंट इन लोअर जा। दैट इज क्लियर? जस्ट लाइक यू सी हियर, मैं यहां पर आपको बता भी दे रहा हूं फॉर्मूला क्या होता है टीथ फॉर्मूला। इन एडल्ट में जो टीथ फॉर्मूला होता है 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। 2 जो होता है ये इंसीजर होता है, 1 क्या है? केनाइन, प्री मोलर एंड लास्ट जो है मोलर होते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला है। एंड दे आर प्रेजेंट इन अपर जा एंड लोअर जा। ठीक है, अपर जा में ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं तो कितना हो जाएगा? 2 2 9 4 2 6 4 10 6 16। मीन्स 16 अपर जा में होता है, 16 लोअर जा में। अब कौन कौन सा टीथ है जो इन फ्रंट होते हैं? ठीक है, दिस इज नोन एज द इंसीजर, 2 पेयर में होते हैं अपर एंड लोअर जा में। केनाइन जो नुकीले दांत होते हैं 1 पेयर में होता है, दोनों साइड में होता है 1 पेयर, सॉरी 1 पेयर, एक 1 साइड 1 एक साइड होता है, मतलब 1 पेयर अपर जा में 1 पेयर लोअर जा में। 2 पेयर आपके प्री मोलर होते हैं दैट इज प्रेजेंट बिहाइंड द केनाइन। और जो लास्ट वाले टीथ होते हैं उसको हम मोलर बोलते हैं। दिस द रिस्पॉन्सिबल, प्री मोलर एंड मोलर दोनों का मेन फंक्शन होता है दैट इज द ग्राइंडिंग ऑफ फूड मटेरियल। ओके, दैट इज क्लियर? इंसीजर का फंक्शन क्या है? दिस द रिस्पॉन्सिबल, जो सबसे आगे के दांत क्या करते हैं उससे, दैट इज यूज फॉर द कटिंग ऑफ फूड मटेरियल, फूड को कट करने का काम करते हैं। केनाइन का फंक्शन क्या है? दैट इज द टीयरिंग ऑफ द हार्ड मटेरियल। जैसे कोई चीज नहीं टूटता कटता तो हम उसका प्रयोग करते हैं, जो न्यूक्लियर टिथ है उसको केनाइन बोलते हैं। क्लियर? एंड प्री मोलर एंड मोलर का फंक्शन क्या है? दैट इज क्लियर? मीन्स दैट इज यूज फॉर द ग्राइंडिंग ऑफ फूड मटेरियल। दिस इज द इन केस ऑफ एडल्ट टीथ फॉर्मूला। ठीक है, चाइल्ड की बात करें तो चाइल्ड में 20 टीथ आर प्रेजेंट। चाइल्ड में जो टीथ होते हैं वो 20 होते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज द बेबी टीथ और मिल्क टीथ। ठीक है, एंड दे स्टार्ट अपियरिंग अबव द गम लाइन व्हेन बेबी 6 or 7 month ओल्ड। स्टार्ट कब होता है टीथ निकलना? जब बेबी 6 या 7 मंथ की हो जाती है तब उसमें से स्टार्ट होता है गम से बाहर निकलना। ठीक है, बाय द टाइम ऑफ चाइल्ड इज 6 year old अ सेकेंड सेट ऑफ 32 larger teeth called permanent teeth। ठीक है, 6 year के बाद या जब बेबी 6 year की हो जाती है तो जो सेकेंड टीथ है या सेकेंड सेट का टीथ है वो अपीयर होता है, जिसको हम परमानेंट टीथ बोलते हैं। तो इन केस ऑफ ह्यूमन लाइफ देयर आर 2 times टीथ आर डेवलप्ड। ओके, एंड जब परमानेंट टीथ आ जाता है मीन्स दैट इज रिप्लेस द मिल्क टीथ। मिल्क टीथ को बिल्कुल रिप्लेस कर देते हैं, मतलब हटा देते हैं, उसकी जगह परमानेंट टीथ आ जाते हैं। ओके,
इन ह्यूमन बॉडी की बात करें तो कहा था जो हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी होता है वो क्या होता है, एनामल होता है, ठीक है। एनामल इज द हार्डेस्ट सबस्टांस इन द ह्यूमन बॉडीज एंड कवर्स द आउटर पोर्शन ऑफ टीथ, ठीक है। अभी मैं बताया एनामल के बारे में कि आउटर पोर्शन जो चमकीला व्हाइट कलर का होता है, ये टीथ को प्रोटेक्ट करता है, यह सबसे हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी का होता है। हाउ कैन दैट इज मेड ऑफ, ये किसका बना होता है, दिस इज मेड ऑफ द मिनरल सॉल्ट। Mineral salt means calcium and magnesium with creatine proteins. कैल्शियम एंड मैग्नीशियम विथ क्रिएटिन प्रोटीन का ये बना होता है। दैट इज क्लियर। तो यू सी हियर डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ जो इन फ्रंट के आपके ये इंसीजर हो गए, उसके बगल में जो नुकीले दांत हैं दिस नोन एज द कैनाइन, जो ये दो पेयर है ये आपका प्री मोलर हो गया, और लास्ट जो है वो आपका मोलर है। क्लियर। सेकंड ऑर्गन की बात करें, टीथ की ये प्रकार है, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर। ओके। नेक्स्ट है टंग। टंग इज द मस्कुलर ऑर्गन अटैच टू द फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी जो सबसे लास्ट पार्ट होता है इनर साइड, वहां से टंग ये अटैच होता है, या मस्कुलर ऑर्गन होता है, मीन्स दैट इज मेड ऑफ द मसल्स। इट इज अ फ्री टू मूव एंड इट फ्रंट इन वेयर इट कैन मूव इन ऑल डायरेक्शन। जो वन साइड है मतलब माउथ में जो बाहर की तरफ है उसका मुंह बिल्कुल फ्री होता है, किसी तरह उसको मूवमेंट करने में हेल्प करता है। एंड दिस इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन एंड स्ट्रॉलिंग ऑफ फूड मटेरियल्स, ठीक है। जो फूड होता है उसको टीथ के अंदर ले जाने में हेल्प करता है, एज वेल एज द सलाइवा को उसमें मिक्स करता है, जिससे फूड इजिली स्वॉलन करने में सहायता मिलती है, ठीक है। अब टेस्ट, टंग का मेन फंक्शन क्या है, दैट इज प्रोवाइड द टेस्ट। द इट हैज 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट बड विच हेल्प अस टू नो अबाउट स्वीट, सावर, बिटर एंड सॉल्टी टेस्ट। जो कॉमनली सॉल्ट है ये बताता है, लेकिन हमारा टीथ जो ऑर्गन्स हैं टंग का, ठीक है, दे रिकॉग्नाइज नियर अबाउट 100 टाइप ऑफ द टेस्ट। ओके। तो मेन 4 है जस्ट लाइक यू सी हियर। सबसे जो आगे वाला पार्ट होता है दिस द स्वीटेस्ट, स्वीट जो स्वीट होता है मीन्स मीठा का ये आवाज कराता है। दोनों जो बगल में होते हैं दिस फॉर द सॉल्टी, सॉल्ट का आवाज कराते हैं। जस्ट इसको इनर साइड जो टंग है, ठीक है, टीथ के साथ जो प्रेजेंट होता है, दिस द रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोवाइड द टेस्ट, किस तरह का, शॉर, खट्टापन ये प्रोवाइड कराता है। और सबसे लास्ट वाला जो होता है वो बीटर के लिए, जैसे कोई चीज आप खाते हो, यदि बीटर है दवा तो कहाँ लगती है, बिल्कुल नीचे जो गर्दन के नीचे आता है, ठीक है। दैट इज क्लियर। ओके। टीथ के बाद जो होता है फूड, दैट इज डायरेक्टेड ट्रांसफर इनटू द फूड पाइप, ओइसोफेगस बोलते हैं, ठीक है। द फूड पाइप इज लॉन्ग, नैरो एंड मस्कुलर ट्यूब दैट कनेक्ट द बक्कल कैविटी टू द स्टमक, ठीक है। ओइसोफेगस जो लॉन्गर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है या बक्कल कैविटी से अटैच होकर कहाँ लोअर साइड में कहाँ अटैच होता है, स्टमक रीजन में, ठीक है। फूड दैट हैज बीन च्यूड इन द माउथ इज पुश्ड डाउनवर्ड इनटू द ओइसोफेगस। जो फूड च्यूब किया गया है, ग्राइंडिंग किया गया माउथ में, उसको पुश किया जाता है डाउनवर्ड साइड मीन्स इन ओइसोफेगस में, एंड फ्रॉम हियर द ऑनवर्ड्स मूवमेंट ऑफ फूड इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ मसल्स प्रेजेंट इन वॉल ऑफ द ओइसोफेगस। जब फूड ओइसोफेगस में आता है तो इसके मसल्स में एक मूवमेंट होता है जिसको हम मूवमेंट के कहते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट, पेरिस्टालसिस मूवमेंट, ठीक है। पेरिस्टालसिस मूवमेंट के कारण फूड ऊपर से नीचे की तरफ मूव करता है। जैसे स्प्रिंग ले लीजिए, उसको दबा दीजिए, ठीक, फिर छोड़ दीजिए, कंस्ट्रक्ट करिए फिर छोड़िए, ठीक है। दबाते हैं तो बिल्कुल छोटा स्पॉट वहां पर रख देते हैं, और जैसे उसको छोड़ते हैं वो पूरा फैलता है तो फूड ऊपर से नीचे आता है, ठीक है। इस तरह के मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टालसिस। जस्ट लाइक यू सी हियर, मैं आपको बता देता हूं, जैसे ये स्ट्रक्चर है ओइसोफेगस का, ठीक है। इसको जब हम श्रिंक करते हैं मतलब दबाते हैं, जब कंस्ट्रक्ट होता है
ठीक, जैसे ये पार्ट आ गया, ठीक, फूड यहाँ पर है, जैसे रिलैक्स कंडीशन में आएगा ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये नीचे की तरफ मूव करेगा, ठीक। जो फूड पार्टिकल्स है वो यहाँ जो था वो कहाँ चला गया, नीचे आ गया, ठीक है। तो इस तरह के मूवमेंट को हम पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं। क्लियर? ओके, जहां से ओएसोफेगस स्टार्ट होता है वहां पे ही आपका विंड पाइप होता है, और यहाँ पे एक मस्कुलर ऑर्गन फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेपरेशन ऑफ द फूड पाइप विद द विंड पाइप। दिस इज नोन एज द एपिग्लॉटिस। ठीक है, इसको हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। ये क्या करता है, फूड पाइप को विंड पाइप से सेपरेट करता है। ओके, नेक्स्ट पार्ट है स्टमक। स्टमक में क्या होता है, द स्टमक इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। सबसे चौड़ा जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है, स्टमक का होता है। इट इज द थिक वॉल्ड सैक लाइक मस्कुलर ऑर्गन, थिक वॉल का बना होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर ऑर्गन होता है, एंड इट रिसीव फ्रॉम द फूड फ्रॉम, कहां से रिसीव करता है वो, ओइसोफेगस में, एंड दे ट्रांसफर्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। फूड कहां से इसमें आता है, स्टमक में, ओइसोफेगस से आता है। उसके बाद वो फूड को कहां ट्रांसफर करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब यहां पर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको ध्यान से सुनिएगा। द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस विच हैव म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एंजाइम प्रेजेंट इन देम। जो इनर वॉल होता है स्टमक का, जस्ट लाइक यू सी, ये स्टमक है, ये इनर वॉल है, ठीक है। जो इनर वॉल है स्टमक का, दैट इज रिलीज द गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करता है जिसमें म्यूकस प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं। म्यूकस का फंक्शन है वह जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उससे प्रिवेंट कराना स्टमक को। यू लिसन हियर, म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, ठीक है, क्योंकि एसिडिक कंडीशन ज्यादा होगा तो वो क्या हो जाएगा, जल जाएगा या डिग्रेड हो जाएगा, ठीक है। तो उसको मेंटेन करने के लिए म्यूकस सीक्रेट होता है। म्यूकस क्या होता है, दैट इज द वाटरी सबस्टांसेस, ठीक है। जैसे एसिड है उसमें पानी मिला दीजिए तो वो न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है, या एसिडिक मात्रा उसकी कम क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो वही काम ये करता है। दूसरा जो एंजाइम यहाँ पर जो एसिड सीक्रेट होता है वो कौन सा है, HCl होता है। HCl, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ HCl इन केस ऑफ स्टमक, दिस द रिस्पॉन्सिबल फॉर द किल्स द बैक्टीरिया। यदि फूड के साथ कोई बैक्टीरिया इंटर किया है बॉडी में तो उसको किल करने का काम करता है। एंड इट आल्सो प्रोवाइड द एसिडिक मीडियम, और फूड को क्या करता है, एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट कर देता है। क्योंकि जो फूड आपका बक्कल कैविटी में था वहां सलेवरी एमाइलेज मिक्स होता है, ठीक है। सलेवरी एमाइलेज जो होता है वो आपका बेसिक मीडियम का होता है, बेसिक समझ रहे हो, सोपी फिल जो होता है बेस होता है, ठीक है। और वहां पर जो माइक्रोब्स होते हैं, कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो एसिडिक मीडियम में सर्वाइव करते हैं, कुछ बेसिक मीडियम में। तो वहां पे यदि एसिडिक मीडियम का रहा होगा तो वहां पर वो किल हो गया होगा बेसिक मीडियम में डालने पर, क्योंकि उसको न्यूट्रल करके उसको किल कर देगा। और यहाँ जब फूड आता है तो जो बेसिक मीडियम का फूड था उसको HCl के कारण किस में कन्वर्ट कर देता है, एसिडिक मीडियम में, जिसके कारण यदि बैक्टीरिया कोई बेसिक मीडियम का था तो यहां पर वो किल्ड हो जाए। दैट इज क्लियर। ओके, तो स्टमक में जो एसिडिक मीडियम है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द किलिंग द माइक्रोब्स। एसिडिक मीडियम में यदि जो बेसिक मीडियम का माइक्रोब्स उसको किल करने का काम करता है। एज वेल एज दैट इज आल्सो हेल्प फॉर द इनएक्टिव पेप्सिन जो होता है, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, इनएक्टिव पेप्सिन को एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। दैट इज क्लियर। यहां दिया है ना आपके बुक में, द एंजाइम इज द स्टमक ब्रेक डाउन प्रोटीन टू सिंपलर सबस्टांस लाइक एमिनो एसिड्स, ठीक है। तो जो यहां एंजाइम होता है उसका नाम है पेप्सिनोजन। याद कर लीजिए क्या नाम है, पेप्सिनोजन। एंजाइम यहां पर प्रेजेंट होता है जो इनएक्टिव कंडीशन में होता है पेप्सिन, उसको एक्टिव में कन्वर्ट करने का काम इसी HCl के सीक्रेट होने के बाद होता है। दैट इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज नॉट ऑल दैट स्मॉल। नाम तो स्मॉल है लेकिन उस स्मॉल होती नहीं है, क्योंकि दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल।
एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा जो पार्ट होता है यही होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, मीन्स द लेंथ इज 6 to 7 मीटर लॉन्ग, मतलब पूरी जो लेंथ होती है एलिमेंट्री कैनाल की 9 to 10 मीटर होता है, उसमें से 6.5 या 6 to 7 मीटर जो होता है केवल क्या है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है। एंड दिस द रिस्पॉन्सिबल फॉर द इट हेल्प इन द डाइजेशन बाय यूजिंग 3 टाइप्स ऑफ सिक्रेशन। इसमें 3 टाइप के ग्लैंड के द्वारा इंजाइम सिक्रेट होता है। दिस द रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड्स, जहां पर फूड का कंप्लीटली डाइजेशन होता है। ठीक है, पहला जो ग्लैंड है लीवर है। ठीक है, तो लीवर के बारे में थोड़ा सा यू नो अबाउट देम। द लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडीज। ह्यूमन बॉडी जो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, वो लीवर होता है। और यदि लार्जेस्ट आर्गन की बात करें तो क्या है, कमेंट बॉक्स में इसको लिख के भेजिएगा। ओके, इट इज प्रेजेंट स्लाइटली बिलो द स्टमक। लीवर कहां प्रेजेंट होता है, बिल्कुल जो स्टमक होता है उसके नीचे और राइट साइड्स में। इट सिक्रेट्स बाइल जूस। ठीक है, इसका सिक्रेशन किसका करता है, बाइल जूस का करता है। एंड दिस बाइल जूस आर स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, जिस द बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जहां पर जो बाइल जूस सिक्रेट हो रहा है उसको स्टोर करता है। इसका फंक्शन क्या है, बाइल जूस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ फैट्स। जो फूड में फैट मॉलिक्यूल्स है उसको ब्रेक डाउन करके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना, यह किसका फंक्शन है, इसी बाइल जूस का। ठीक है, तो क्या करता है बाइल जूस, जैसे फैट है तो फैट को ये कन्वर्ट करता है फैटी एसिड। ठीक है, प्लस ग्लिसरॉल। तो बाइल जूस फैट को डाइजेस्ट करके फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में इसका फॉर्मेशन करता है। दिस इज द सिंपल फॉर्म ऑफ फैट्स। ओके, सेकेंड जो ग्लैंड है पैंक्रियाज। ठीक है, पैंक्रियाज इज येलो लीफ शेप्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। स्टमक के जस्ट नीचे ये भी प्रेजेंट होता है और लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहां पे प्रेजेंट होता है, इस स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये पैंक्रियाज है। इसका फंक्शन क्या है, दे सिक्रेट द पैंक्रियाटिक जूस। इसके द्वारा पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन होता है, विच एक्ट ऑन द कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट्स एंड ब्रेक देम इनटू द सिंपलर फॉर्म। ये क्या करता है, जो पैंक्रियाटिक जूस सिक्रेट होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट को ब्रेक डाउन करके उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। दैट इज क्लियर। And third part, that is the small intestine. The secretion from the small intestine, जो small intestine है उससे भी कुछ enzyme का secretion होता है। Just like you listen here, the inner wall of the small intestine itself secrete the intestinal juice. इसके द्वारा किसका secretion होता है, intestinal juice को होता है। And this juice digest carbohydrate, protein and fats. इसका function क्या है कि उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, इसको ब्रेकिंग डाउन करके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ओके, द स्मॉल इंटेस्टाइन यूजेस द बाइल, पैंक्रियाटिक एंड इंटेस्टाइनल जूस टू कंप्लीट प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इटसेल्फ हियर। ठीक है, पूर्ण रूप से जो डाइजेशन है यहां पर कंप्लीट होता है। बाइल जूस के द्वारा, पैंक्रियाटिक जूस के द्वारा, इंटेस्टाइनल जूस, तीनों मिलकर के जो फूड है उसको सिंपल फॉर्म में यहाँ कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, सिंपल फॉर्म क्या होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, कार्बोहाइड्रेट जब ब्रेक डाउन करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में। दिस द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन दैट इज कन्वर्टेड इन द एमिनो एसिड्स। प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एमिनो एसिड। ओके,
एंड थर्ड के बारे में बता दिए, दैट इज फैट ब्रेकिंग डाउन इनटू द फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इससे रिलेटेड है एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन. जो फूड आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो गया, कैसे एब्जॉर्ब होते हैं. तो यू नो अबाउट देम. इन केस ऑफ इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन देयर इज फिंगर लेग प्रोजेक्शन आर प्रेजेंट. ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है फिंगर लेग प्रोजेक्शंस, जिसको हम विलाई बोलते हैं. दैट इज लार्जर नंबर दे आर प्रेजेंट, और इसी में ब्लड सेल्स होते हैं. ठीक है, विलाई का फंक्शन क्या है. द विलाई इंक्रीज द इफेक्टिव सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड. ठीक है, इसके जो विलाई है ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है स्मॉल इंटेस्टाइन के, जिसके कारण फूड यहाँ पर ज्यादा समय तक स्टोर रहेगा, और ज्यादा समय तक स्टोर रहेगा तो इजिली वो एब्जॉर्ब हो जाता है. दैट इज क्लियर. दिस एब्जॉर्ब फूड इज पास टू द ब्लड वेसल्स. जब फूड यहाँ डाइजेस्ट हो जाता है तो जो ब्लड वेसल्स हैं इसमें वो ब्लड फूड को ट्रांसफर कर देता है. द फूड दस गेट ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट ऑफ बॉडी वाया द ब्लड्स. क्योंकि ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट है, ब्लड वेसल्स जो है. ठीक है, तो यहां से जो फूड एब्जॉर्ब हुआ है इस ब्लड वेसल के द्वारा पूरे बॉडी को सर्कुलेट कर दिया जाता है. दैट इज क्लियर. It is used to produce energy and to build complex substances required by the bodies. मतलब वो फूड को बॉडी अपने अनुरूप ब्रेक डाउन करके एनर्जी उससे ऑब्टेन कर लेती है, जिससे जो उसकी एक्टिविटी है वो कंप्लीट हो जाती है. ठीक है, दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन. वी आल्सो डिस्कस स्टेप्स. यही प्रोसेस है एसिमिलेशन का, मतलब एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड यूटिलाइज देम. ओके, जो लास्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, दिस नोन एज द लार्ज इंटेस्टाइन. द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन. लार्ज तो इसकी वाइडिंग, जो वाइडिंग होती है मतलब वाइड मीन्स चौड़ा इसकी ज्यादा होती है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा होता है. और इसकी जो लेंथ होती है ओनली दैट इज 1.5 मीटर इन लेंथ. ठीक है, केवल 1.5 मीटर ही होता है. इसमें होता क्या है, द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब फूड इंटर द लार्ज इंटेस्टाइन. जो फूड आपका कंप्लीटली डाइजेस्ट या अनडाइजेस्ट फूड जो थे स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो कहाँ चले जाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में. हियर द एक्सेस ऑफ वाटर एंड सम मिनरल आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड. अनडाइजेस्टेड फूड में यदि एक्सेस अमाउंट में वाटर और मिनरल प्रेजेंट है तो भी वहां पे इसको एब्जॉर्ब किया जाता है. द लेफ्ट ओवर वेस्ट पार्ट ऑफ द फूड पास टू द रेक्टम. जो फूड वहां पर मतलब जो वेस्ट मटेरियल है वह इस लार्ज इंटेस्टाइन से किसमें पास कर दिया जाता है, रेक्टम रीजन में. एंड इज स्टोर देयर अ फीकल मैटर. और यहाँ पर वो फीकल मैटर के रूप में प्रेजेंट होता है, जस्ट लाइक ईयर. ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन से ये रेक्टम में आ गया, ये रेक्टम में. ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम में, स्मॉल इंटेस्टाइन फिर लार्ज इंटेस्टाइन, इसके थ्रू कहा गया, रेक्टम. क्लियर. द फीसेस आर एलिमिनेट थ्रू द एनस. और इस फीसेस मटेरियल को, जो वेस्ट मटेरियल है बॉडी से बाहर एनएस के द्वारा निकाल दिया जाता है. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द एगेशन. दैट इज क्लियर. So this is the whole part of the discuss here, the digestive systems or nutrition in case of human beings. Thank you all of you watching the videos. If you like them, share and subscribe my channels. Thanks. If any queries, then you write in comment box.